Okay, so good evening, everyone. How are you all? Am I audible? Good evening, sir. Okay, so good evening. And then, do you have any doubts? So theories we have already completed. Uh, Concepts were all discussed. Just we have to discuss problems. So, would you like to ask any question? Anyone? Do you have any doubts? You can ask them. Yeah. So today will be, I think, last class for probability, and then I can discuss your doubts in one more class. So let us do few problem what we discussed in last class. So continuation in the we'll discuss problem based on the theories we did in last class. चलो पहले तुम लोग ट्राई करो फिर अगर नहीं होता है तो क्वेश्चंस लिखता हूँ. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज you all sit with the pen and paper, okay, and you try this. So if three dice are thrown simultaneously, if three dice are thrown simultaneously, then probability of getting okay, let's start with a simple question. Then probability of getting right. Some let's say 5 each. Okay, so you can try in simple ways or okay, try this. And I want to try some other question. So this I've written, okay. So try second question. I will write same question. Okay, similar. Just I will ask you other thing. If three dice are thrown simultaneously, so then find the probability of getting 6 on 2 dice. So there are many ways of solving this type of problems. Uh, Directly you can write sample space or without writing sample space, or you can, like in the second question, you can use binomial distribution. So first you all try, okay, and then so try to answer these two questions quickly so that we can do more.
You try them. Write one more question. So the next question is, the mean and variance of a binomial distribution are the mean and variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively. 4 and 2 respectively. So then probability of 2 successes. Then probability of 2 successes each. You should already know the meaning of binomial distribution. So now you have 3 questions. Okay, so it seems I have to do, right? Okay. See then, let's do the third question first. So let's solving, I'm solving the third one. You want to solve me here or there? See. So you know binomial distribution, the mean is, what do you say? Actually, when we say a random variable x has binomial distribution, so the parameter actually is n comma p. So if you remember, in the binomial distribution, the probability distribution was something like ncx p की power x q raised to power x. So what is the meaning of n? So the meaning of n was number of trials. P is probability of success in each trial. Probability of success in each trial. Okay, Q matlab probability of failure in each trial. Each trial, and the P plus Q is 1. What is X? So X, there is a number of successes. So this is all about binomial distribution. Okay. N is how many times you try. So mainly parameter is NP. Rest depends. Like if you have P, then Q you can find, because P plus Q is 1. Okay. X is number of success. So obviously you try n times, so success will be 0, 1, 2 up to n. So X may take value either 0 or 1 or 2 up to n. So like you try n times, you may not get success. It means 0 success, or you may get 1 time success, you may get twice success, or you may get all the time success, all are possible. Okay, the question is what? So if you remember, we have given mean and variance of binomial. This question is asked in JEE Mains, third question. So the mean and variance of the binomial distribution are 4 and 2. To find the probability of 2 success. So see, this was the in general theory. Now x is number of success. They want to ask what is the probability of x is equal to 2. So tell me, using this formula, tell me what will be the formula of probability. Okay, I have written something wrong here. Ncx p raised to power x q raised to power n minus x. Okay. So now just you have to replace in this formula in place of R2. So nc2 p raised to power 2 and q raised to power n minus 2. What I did? अच्छा यहाँ x लिख दो, ठीक है, या तो x या r.
मर्जी है. So if you write R here, so then you have to write R. Okay, if you want to write R here, it's up to you. Are you getting what I'm saying? If you want to write R here, then it will be NCR P raised to power R Q raised to power n minus R. This is a binomial distribution. So what is missing here? The question is find the probability of two success. है ना भाई? तो ये निकालने का तुम्हें क्या क्या जरूरत है? आप बताओ, इसमें क्या क्या अननोन है? PQ. So you need N, you need P, you need Q. तो ये तीन चीजें मिल जाएंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. सबसे पहले मैंने क्या देखा, मुझे क्या फाइंड करना है. अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. तो क्वेश्चन में आओ. मीन वेरिएंस, मीन 4 है, मीन इज 4, वेरिएंस इज 2. चलो मीन 4 है, चलो NPQ आ जाएगा. तो हमें गिवन है मीन, जिसको हम लोग EX बोलते थे अगर याद हो तो, या म्यू, ये दे रखा है 4 है. और वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते थे, एंड दैट इज 2, है ना. ओके, अब क्वेश्चन ये है, बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, EX या म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा स्क्वायर का. इसको याद है, लास्ट क्लास में लिखाया होगा मैंने. Tell me, in case of binomial distribution, what is the formula for mean and variance? देख के बताओ. तुम लोगों ने नोट तो किए नहीं होंगे, बट मैंने नोट्स भेजा होगा. देख के बताओ, कोई याद नहीं. What is mean? X1.P1. रिपीट करो, समझ नहीं आया. X1P1. नहीं, वो तो हम मल्टीप्लाई करते x1 p1 x2 p2 एंड ऑल. बट यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला है, वो तो तुम्हारे पास मीन का फॉर्मूला है. यू आर टेलिंग करेक्ट. सम इज x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 xn pn, प्रोडक्ट ऑफ xi एंड pi, देन यू सम इट. बाइनोमियल डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, n इंटू पी. n क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स. p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ट्रायल. तो मीन सीधा आता है n इंटू पी. वेरिएंस आता है n इंटू पी इंटू क्यू. ठीक है. जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे एग्जाम में. तो नोट्स भेजा हूँ, उसको पलट के देख लिया करो, या हर बुक में लिखा होगा. तुम जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो जेई एडवांस मेंस के लिए, देखो उसमें ये फॉर्मूला लिखा होगा. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोल के देखो, उसमें लिखा होगा. तो सेल्फ स्टडी करते हो ना. ओके, सो मीन इज 4, सो NP इज इक्वल टू 4. एंड Q तुम्हें पता है P प्लस Q1 होता है. तो Q ना लिख के तुम चाहो तो Q के प्लेस पे 1 माइनस P भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, सब टू यू. ठीक है. NPQ हमारे पास है, वेरिएंस 2 दिया हुआ. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. क्या इन दोनों को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कुछ? बताओ, इन दोनों को यूज Yes. करके. NP की वैल्यू 4 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 टाइम Q. ठीक है ना. NP 4 है फर्स्ट इक्वेशन में. सेकेंड में NP की जगह 4 रख दो, तो 4Q इज इक्वल टू 2. तो Q इज इक्वल टू 2/4. वो कितना आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2. Q आ जाएगा 1/2. Q आ गया. तो Q अगर 1/2 आ गया तो बताओ P की वैल्यू क्या होगी. यहाँ से बताओ, P प्लस Q 1 होता है. फुल स्क्रीन में चैट नहीं दिखता है. जो लोग चैट में लिख रहे हैं उनको पता होना चाहिए. One by Q, two. Q की वैल्यू 1/2 है, तो P की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, क्योंकि P 1/2. प्लस Q 1 है, तो 1/2 आया. तो Q मिल गया, P मिल गया. अब N कैसे फाइंड करेंगे. N8. तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. तो NP was 4, तो P 1/2 रख दो, तो N बराबर 8. ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा,
n इंटू हाफ फोर्थ n बराबर 8, n 8 हो गया, q हाफ p हाफ, और n हमारा 8 हो गया। अब क्या है कि क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस इज व्हाट। तो फिर से मैं वहाँ जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, तो n c 2 p रेज़ टू पावर 2 q रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब हमने n भी फाइंड कर लिया है, p q भी फाइंड कर लिया है, तो n 8 है, 8c2, p है हाफ, हाफ रेज़ टू पावर 2, q है हाफ, हाफ रेज़ टू पावर n माइनस 2। यहाँ से 8c2 सॉल्व कर लो, 8 इंटू 7/2 आएगा। nc2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये टोटल मिला के n की जगह 8 रख दो, 8 माइनस 2 तुम्हारे यहाँ 6 आ गया, है ना। टोटल 1/2 की पावर 8 हो गया। तो फाइनली तुम इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा कितना, 8 7 जा, चलो थोड़ा कैंसिल कर लेना, तो आसान रहेगा। तो ये 4 इंटू 7 है, ठीक है, 4 इंटू 7, और ये 1/2 की पावर 8 है, तो 4 2 स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको सही सिंप्लीफाई करो, तो 7/2 की पावर 6 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 की पावर 2 है, तो 2 पावर मैंने कैंसिल यहाँ से घटा दिया, तो 7/2 की पावर 6 कितना आता है, 64। 64. तो ये आंसर आ गया। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, मैंने यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ आंसर जो है वो 7/64। ओके चलो, ये तो थर्ड क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, इन बाइनोमियल मीन इज n टाइम्स p, वेरिएंस इज n p q, देन वैल्यूज दे रखी थी, तो सॉल्व करके p प्लस q 1 होता है, ये भी पता है हमें, तो इसको यूज करके n p q आ गया, देन x राउट 2 की प्रॉपर्टी आ गई। ये तो बाइनोमियल बेस था। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्या है, इफ 3 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कितने डाइस थ्रो किए हमने, अनम्यूट करके बोलो, चैट नहीं देख पा रहा हूँ। 3 dice. So n is 3, number of trial is 3, and find the probability of getting 6 on 2 dices. So like x, you can see number of times, yeah, number of dice on which 6 comes, number of die on which 6 comes. Okay, तो यहाँ से क्या होगा, सो x की पॉसिबल वैल्यू जब 3 बार ट्राई किया है, तो हो सकता है कि एक भी डाई पे 6 ना आए, एक पे 6 आ सकता है, या 2 पे, या 3 पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, x की वैल्यू 0 to n होती है, मतलब इट कैन टेक वैल्यू आइदर 0 और 1 और 2 और 3। चलो, तो तुमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 6 ऑन 2 डाइसेस, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 निकालना है, तो सेम फॉर्मूला लगाओ जो पीछे लगाया हमने। बाइनोमियल में x, बाइनोमियल कैसे पता चला मुझे, कोई भी क्वाइन या डाइस वाला क्वेश्चन में बाइनोमियल यूज होगा। बाइनोमियल के लिए कुछ कंडीशन था, ईच ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। बताओ x राउट 2 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला x राउट 2 के लिए, 3c2 into p raised to 2 q1. हाँ, पी एस इक्वल टू पी क्यू निकालना रह गया। तो पी का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस, एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस, तो पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो 6 आने की किसी एक डाई पे क्या प्रोबेबिलिटी है, किसी एक डाई पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6, और 6 नहीं आने की 5/6। तो ये जो वैल्यू है पी क्यू, उससे निकलेगा कि एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस के प्लेस में यहाँ पे है 6 कम्स, तो तुम्हें ये देखना है स्मॉल p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, सो वन टाइम में किसी डाई पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/6,
पुट कर लेना यहाँ पे 3C2 1 आएगा और P है हमारे पास, सॉरी 3C2 3 आएगा, सॉरी 3C2 की वैल्यू 3 आएगी और P की वैल्यू 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर 1/36, Q है 5/6, टोटल 15/216। ठीक है, तो इस तरह से ये आया। और भी तरीके हो सकते हैं, एक तरह हमने बाइनोमियल यूज़ किया, बिना बाइनोमियल भी कर लोगे। 3 डाइसेस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस लिखोगे तो टोटल 216 आउटकम आएगा, 6 × 6 × 6। अब उसमें तुम काउंट करोगे 2 बार 6 आया, मतलब देखो इसका दूसरा मेथड अगर मैं करूँ, है ना, एग्जैक्टली 2 डाइस से दूसरा मेथड, अगर सेकंड क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूँ, तो सपोज सॉल्व, तो हमने क्या किया है, डाई इज थ्रोन या 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 3 डाइस आर थ्रोन, बात सेम है, एक डाइस को 3 बार फेंको या 3 डाइस, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस बताओ कोई क्या आएगा। इफ यू राइट द सैंपल स्पेस देन इट विल लाइक, हो सकता है 1 1 1 या 1 1 2, है ना, 1 1 3 लाइक दिस, 1 1 4, फिर 1 1 5, इस तरीके से 1 1 6 एंड सो लाइक, ऐसे ही तुम लिखोगे टोटल कितने आउटकम आएंगे, टोटल लास्ट में आएगा 6 6 6। सो कितना आएगा, तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस काउंट करूँ, ठीक है, 2.6. हाँ, या तुम बोलो कार्डिनलिटी, ऐसे भी लिखते लो, कार्डिनलिटी ऑफ एस। सो फर्स्ट डाई पे 6 आउटकम, सेकंड डाई पे 6 आउटकम, थर्ड डाई पे 6 आउटकम, टोटल 216 आउटकम्स हैं तीनों डाइस पे। ओके, तो ये है 216 आउटकम्स टोटल है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो लाइक यही बॉक्स मेथड, लाइक फर्स्ट डाई, सेकंड डाई, थर्ड डाई, सो टोटल 216 आउटकम्स है। क्वेश्चन ये था तुम्हारा, तुमसे पूछा है इवेंट ई नाम देता हूँ मैं, ठीक है, सो लेट मी से इवेंट ई, तो इवेंट ई का मतलब हुआ 6 on 2 डाइसेस, 6 on 2 डाइसेस। अब तुम चेक करो ऐसे कितने आउटकम हो सकता है जहाँ 2 डाइस पे 6 आया होगा। तो देखो सिंपल है, तुम्हारे पास 3 है, तो बोले 3 केसेस हो सकता है। 3 केस समझ आ रहा है कौन से हैं, लाइक हो सकता है कि फर्स्ट डाई एंड सेकेंड डाई पे 6 आया, सी व्हाट आई एम सेइंग, मतलब यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, फर्स्ट डाई पे 6 आया, फिक्स कर दिया, सेकंड डाई पे 6 आया, ये हो सकता है सेकंड या थर्ड डाई पे 6 आया, ये हो सकता है फर्स्ट डाई पे 6 आया और थर्ड पे 6 आया। सो दिस पोजिशन हैज ओनली वन चॉइस, दिस पोजिशन हैव ओनली वन चॉइस। अब यहाँ पे कितनी चॉइस है, 6. नो, अगर 6 ले लोगे तो यू आर काउंटिंग 6 ऑल्सो, बट 6 नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ 2 बारी 6 चाहिए। सो हेयर ओनली 5 choices are there, 1 2 3 4 5। Again here I have 5 choices, here I have here I have 5 choices। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी होगा 661 662 663 664 665, ये 5 ऐसे नंबर हैं, ये नंबर का 166 266 366 466 566 लाइक दिस, here will be 616, सॉरी 3 नहीं। सो तुमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग पढ़ा होगा ना, तो आई एम यूजिंग दैट एक्चुअली। और का मतलब होता है एडिशन, तो देन आई विल ऐड। So total possibility in which 6 comes on 2 dices, such possibility are, so cardinality of set E, or you say number of elements in set E, that is 5 plus 5 plus 5, 5 इस टाइप के, 5 इस टाइप के, 5 इस टाइप के, टोटल 15 आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया, तो फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S।
तो 15/216। एक ये भी मेथड है और एक यहाँ हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया, वही मेथड है। ठीक है, ओके। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। If 3 dice are thrown simultaneously, then probability of getting sum 5. बताओ, ये तो कर सकते हो यार, सिमिलर क्वेश्चन है। 1/18। 1/18। ओके, चलो देखता हूँ। तो क्वेश्चन है कि 3 डाइस को, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 3 डाइस को तुमने थ्रो किया, तो टोटल सैंपल स्पेस तो पता ही है तुम्हें, 6 × 6 × 6। ठीक है, तो ये टोटल 216 तो आ गया। अब ई इवेंट है, सम जो है वो 5 है, तो काउंट ही कर लेते हैं। चलो, क्या क्या आउटकम हो सकता है। 1 1 कितना, 3, फिर इसी में Yes. चेंज कर लो, 1 3 1 3 1 1। फिर एक हो सकता है 2 1 कितना, 2 2 1. 2, है ना। फिर ऐसे ही 2 2 1, फिर 1 2 2, ये 3 पॉसिबिलिटी है। और 5 कब आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। No, sir. तो 3000 लोगे तो 4 1 0 होता नहीं है, डाइस पे तो 1 से 6 तक ही होता है। तो कितने आउटकम मिले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई, हाउ मेनी आर देयर, दिस 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया 6 आउटकम अपॉन 236, तो 1/36 भाई। ओके, तो ये तो एक मेथड था, इसका दूसरा मेथड भी है। तो दूसरे मेथड से मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। क्वेश्चन ये था कि हमने एक डाइस 3 डाइस को थ्रो किया और सम 5 आना चाहिए। तो एक मेथड ये होता है, देखो जैसे क्या है, सेकेंड मेथड फर्स्ट क्वेश्चन का ही। सो यू नो सैम्पल स्पेस क्या है, एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 6 तक। मतलब डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अब ई जो तुम्हारा है वो इस तरह से है, वैसे आउटकम्स लेना है जहाँ पे x + y + z कितना है 5। ठीक है, तो ऐसा नंबर तुम्हारा 1 से 6 के बीच। यहाँ देखो, अब एक्स वाई जेड तुम क्या क्या ऐसा हो सकता है, देखो एक्स का रेंज क्या हो सकता है, एक्स मिनिमम हो सकता है 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है एक्स, सोचो। सम 5 आने के लिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। 5। बट 5 लोगे फिर वाई जेड को तुम्हें 0 लेना पड़ेगा, बट वाई जेड की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है ना। क्योंकि ये 1 से 6 तक हो सकता है ना, तो 3 तक जा सकते हैं। सिमिलरली y कैन ऑल्सो टेक वैल्यू 1 2 3 मैक्सिमम, एंड z कैन Sample ऑल्सो space टेक वैल्यू। X Y Z. ठीक है, अभी देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक मेथड क्या होता है कि इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, लाइक x की वैल्यू 1 से 3 तक हो सकती है, तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 इंटू, फिर यहाँ भी y की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से 3 तक। तो यू राइट द सेम थिंग, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, एंड अगेन z की वैल्यू हो सकती है 1 से 3 तक। पावर लिख रहा हूँ मैं, x की पावर 1, x की पावर 3। सो द फाइनली ये आया x + x² + x³ इस पूरे की पावर 3 आई। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए, सम 5 चाहिए। ओके, सो अब तुम्हें क्या चाहिए, सम 5। हमें ये देखना होता है कि x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो वी हैव टू सी जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या होगा, तुम्हें ये देखना है। देयर इज द ट्रिक, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ, so you have to count the coefficient of x की पावर 5 in this one,
सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 5। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? फिर उसमें x कॉमन ले लो अंदर से, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x की पावर 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर 5 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर 5। और ये एक्चुअली वही है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स क्यू माइनस 1 का फॉर्मूला पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का? मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। चलिए क्या होता है, एक्स एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर एन माइनस 1 तक होता है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसको मैं लिखा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस सीक्वेंस सीरीज में ये फॉर्मूला तुम प्रूव भी कर सकते हो जीपी से, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ला सकते हो। ओके, मेरा मतलब क्या है, आप यहाँ से देखो, सो वी कैन राइट इट व्हाट, एक्स टू पावर 5 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 5 एंड एक्स माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 5। ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे वाला तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में से तुम्हें लग रहा होगा, तो पिछला वाला ही ठीक है, -5 तो ऊपर गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, तो हाउ विल यू सिंप्लीफाई इट? So can you repeat it? हाँ, मतलब ये जो रेड कलर में तुम्हें दिख रहा है पॉलिनोमियल, तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ा है ना? तुम्हें x पावर 5 का ही कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट टर्म कब आएगा? ओके, तो इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा लंबा मेथड है, सो लिव दिस। ये भी आसान था नहीं, इसमें आसानी से हो गया, देखो इतने में ही हो गया। मतलब उससे कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट विल टेक मोर टाइम। सो ये ठीक है, बट प्रॉब्लम तब हो सकती है जब ज़्यादा नंबर आ जाए ना, सम इज़ लाइक 10 बोल दे, तो फिर यहाँ मुश्किल होगा तुम्हें काउंट करने में। बट यू कैन सिंप्लीफाई दैट पॉलिनोमियल, ओके, सिंप्लीफाई करना, नहीं तो देयर इज अ फॉर्मूला इन जीपी। तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल को एक्सपेंशन जब पढ़ोगे ना, सीरीज एक्सपेंशन या इनफाइनाइट सीरीज है ना सीक्वेंस सीरीज में, तो उसके हेल्प से तुम्हारा वो हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ोगे तो उसमें इनफाइनाइट सीरीज का एक्सपेंशन आता है, लाइक 1/1 माइनस एक्स क्या होता है। तो ये बोल रहा हूँ, अगर एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे सीक्वेंस एक्सपेंशन होता है ना, जैसे यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स है, तो तुमने ये पढ़ा होगा। So this you can write 1 plus x square plus x cube and so on up to infinite तक, कोई लिमिट नहीं है। So this सीरीज एक्सपेंशन, उसके लिए तुम्हें वो सीरीज एक्सपेंशन जानना पड़ेगा, then you can do that। या तुम चाहो तो मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ। सो आई थिंक स्टार्ट होगा 5c1 से, 1 + 5c1 x + 4 6c2
इसको अगर एक्सपैंड करोगे ना, मैं अभी तो कल इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 80, तुम्हें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस, x की पावर 5 इनटू समथिंग, तुम्हें ये कांस्टेंट टर्म इसका चाहिए, यू नीड ओनली कांस्टेंट टर्म, क्योंकि x की पावर 5 तो यहाँ है। सो अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो कैसे आएगा, तुम्हें एक्सपेंशन पता है? a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन पता है ना तुम लोगों को, बाइनोमियल थ्योरम। सर बायनोमियल थ्योरम नहीं हुआ। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम हुआ ही नहीं है, चलो इसको फिर रहने दो फिर। मतलब इसको एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम पे होता है, समझ आएगा। ये तो चलो, इसका एक्सपेंशन मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था अभी, किसी एक्सपेंशन था। तो ये तो ठीक है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आएगा फिर उसको यूज़ करके, या बाइनोमियल में फिर बताएंगे वो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एनीवे, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तीनों, ठीक है। तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग ट्राई कर रहे हो घर पे क्या? Yeah, I'm asking, do you have any question or not? I mean, yes or no, you can say. अरे भाई, तुम लोग सुन पा रहे हो नहीं? पता ही नहीं चलता सुन रहे, तो चैट में लिखते हैं लोग, अरे भैया चैट हम नहीं देख पा रहे हैं। ओके ओके। No question. हाँ हाँ, डाउट कैसे होगा भाई, उसके लिए डाउट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, डाउट ऐसे कैसे आ जाएगा? तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आइंस्टीन तुम्हारे सामने कम इंटेलिजेंट, डाउट कैसे आएंगे? करो क्वेश्चन करो। तो ये लास्ट क्लास है प्रोबेबिलिटी का, अगर डाउट हो तो क्लास रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, ठीक है। मतलब अब कोई और चैप्टर करेंगे, अब प्रोबेबिलिटी में जब सॉल्व करो, डाउट हो तो पूछो। दुनिया में 1000 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, अब सारा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा मैं, बट तुम ट्राई करो, डाउट हो फिर डाउट क्लास रखना, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, अ पर्सन कैन किल अ बर्ड विथ प्रोबेबिलिटी, सो अ पर्सन कैन किल अ बर्ड with probability 3/4। मतलब तुम लोगों को सारा एडवांस एडवांस सबका प्रॉब्लम आता होगा, फिर तो मेंस और एडवांस हो सब कर लिया तुम लोगों ने, कोई डाउट नहीं है। तो पर्सन कैन किल अ बर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 3/4, ही ट्राइड 5 टाइम। अरे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मेंस का पेपर उठा लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये जैसे भी देखो क्वेश्चन करके, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो फिर, या तो मुझे चेंज करो या खुद को बेटर बनाओ, है ना। सॉल्व हो रहा है, देन इट्स अ गुड थिंग। So a person can kill a bird with probability 3/4. He tried 5 times. Okay. What is the probability that he may not kill the bird? So what is the probability that he may not kill the bird?
तो लाइक वो निशाना कोई है ना ऐसे बंदूक से लाइक वो ट्राई कर रहा है, शूटिंग टाइप समझ लो, कोर्स ही कैन शूट द बर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 3/4, he tried 5 times, so what is the chance he will not be able to shoot the bird? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता हूँ, ट्राई करके देखो एक बार। चलो हम सॉल्व करते हैं तुम लोगों से ना। So देखो, he can kill with probability 3/4. So what is the probability that he cannot kill? So in one time, okay, in one try he can kill is probability 3/4. In one try he cannot kill is probability 1/4. So, but they ask you they tried 5 times. What is the probability that they will not be able to kill in any time? Sir, 1/1024. Okay, 1/1024. Okay, let's see. So I think your answer is correct. So it's a good thing you answered, you know? Otherwise no one answers. So like see, small p I take probability of killing 3/4 and q I take probability of not killing 1/4. X is the number of times he can kill. He kills the like kills a bird. So 5 बार हो सकता है, एक बार भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है ही विल नॉट बी एबल टू किल द बर्ड, मतलब ही विल बी सक्सीड 0 टाइम। सो नंबर ऑफ टाइम ही इज सक्सीडिंग इन किलिंग द बर्ड, क्या उसका निशाना सही हो गया है ना, ही कैन शूट। सो मे नॉट किल मतलब he failed every time, so x is 0, number of time he kills the bird. So like according to n कितनी बार ट्राई किया, 5 बार, तो 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5, तो 5 से 0 1 हो गया, p तुम्हारा 3/4 था, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, 1/5 की पावर 5। ओके सही लिखा हूँ ना, सॉरी 1/4 की पावर 5, ठीक है, यस 1/4 की पावर 5। So finally 1/4 की power 5, that is 1/20, sorry 1024. Wow, so you told correct answer, very good. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। You all are intelligent, I know, so you can do, but you have to practice a lot, right, for the advanced काम। ट्राई करो, एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी मेंस का है। So a random variable x has the probability distribution, so like a random variable x has probability distribution. So probability distribution is a table, okay? xpx 8 1 2 3 4 5 6 7, okay, देखो, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, so इसको बढ़ा देते हैं 8, and the probability is at x is equal to 1 probability is 0.15, at 2 probability is 0.23, at 3 probability is 0.12, at 4 it is 0.10, at 5 0.20, at 6 0.08, at 7 0.07, 8 0.05.
Okay. So the question is now for the event E. For the event E, and meaning of E is X is prime number. X is prime number. Okay. And F is defined as X is less than 4. Okay. The question is then probability of E union F is. Tell me. So this is again easy question. I try it. This is again asked in JEE mains. Zero point 0.77. Okay, 0.77. Yes. तो कई सारे तरीके हैं ना, आंसर इज करेक्ट. तो सॉल्यूशन में तुम क्या कर सकते हो कि ई में क्या क्या आएगा. ई में देख लो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7. ठीक है. एफ में क्या आएगा, लेस देन 4, 1, 2, 3. अब यूनियन में क्या आएगा, पहले यूनियन ही ले लो. तो यू नो नंबर डोंट रिपीट, सो लाइक 2, 1, 2, 3, 5, 7. ठीक है. यूनियन मतलब टेकिंग ऑल टुगेदर. तो 1, 2, 3, 5, 7. अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इन सब पे वैल्यू ऐड करो. सो 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0.15. 2 पे क्या है, 0.23. सबको ऐड करो. तो लाइक 0.15, 0.23, 0.12. फिर 5 पे क्या है, तो 0.20. 7 पे क्या है, 0.07. अब इसको ऐड कर दो. So this 23 and 12 will be 35. 35 and 15. 50, 52, 70, 07. So like 0.7. Okay. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 coins are tossed simultaneously. So next question is 8 coins are tossed simultaneously. Okay. 8 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 6 heads. So the probability of getting at least 6 heads. Okay. At least 6 heads is what? So this one again you can do. Tell me answer till I'm writing next question. So an unbiased die with faces, an unbiased die with faces
1, 2, 3, 4, 5, 6 are rolled 4 times. Okay, so is rolled 4 times. An unbiased die with faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 is rolled 4 times. Out of the 4 face where the probability that the minimum face value is not less than 2 and maximum face value is not greater than 5. So the probability that minimum face value is not less than 2 and maximum face value is not greater than 5 and maximum face value is not more than 5 is what. So हमने 4 बार टॉस किया है, ठीक है, एक ही डाई को, तो क्या प्रोबेबिलिटी उन चारों में जो मैक्सिमम होगा वो 2 से कम नहीं होगा और मिनिमम जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं होगा. Minimum will not be the less than 2, maximum will not be the more than 5. Three 96 divided by 2 raised to 10. Answer for which one? First, let me name it first and second. 81. Okay, 1 and 2. First one. Yes, yes. So what is the answer? 396 divided by 2 raised to 10. Okay, for the second one. Okay, the first one is easy. 4 by 6. Okay, you got 4 by 6. So let me say. 8 coins are tossed simultaneously. So like n is 8. Okay, I'm solving here. Okay. So n is 8 here. Number of times to try is 8. And probability of getting 6 in, probability of getting coins are
probability of getting one head in one try. I mean, we toss one time and getting head is half, and Q obviously will be half. Then the simple they're asking at least 6 heads. So probability of X more than equal to 6, at least 6 now. So 6 or more than 6. So you can you tried for, so X is number of times we get head. So it may be 0 to 8. So here you want to find probability corresponding to 6, probability corresponding to 7, and plus probability corresponding to 8. Now you can do, right? So 8C6 P raised to power 6 Q raised to power 2, then 8C7 P raised to power 7 Q raised to power 1, and then 8C8 P raised to power 0 Q raised to power 8 and Q raised to power 0. So PQ are same. So obviously 8C6 plus 8C7 plus 8C8. Now you solve it, and it will be half raised to power 10 upon means 2 raised to power 10. So I think your answer will be correct. You just simplify it. 8C6 plus 8C7 plus 8C8. So I applied binomial distribution again here. Okay, now in this. So in this question, they asked us unbiased die with cases 1, 2, 3, 4, 6 all 4 times. So it was 4 times. Okay, so a number of trial is 4, and so X is the number of times we get. Okay, there is probability of minimum value is not less than 2, and maximum face value is not more than 5. So X is the number of 10 on the die. Let's see. Or 10 on the die. Okay. So it may be like 1, 2, 3, 4, 5, 6. But they're asking you what is the probability that minimum value is not less than, so asking probability for not less than 2 means what? X is more than 2 or equal to 2, not less than 2 means getting equal to 2, and the maximum value is not more than 5 means less than equal to 5. Okay, am I thinking right? The question is probability that there are 4 numbers are there, na? So 1 minute. So we have 4 numbers. So we have to think accordingly. So if you consider that much faces, that will be difficult task. So we have to check, na? An unbiased die with faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 are all 4 times. So we tossed it 4 times. The probability that minimum value is not more than 2 and the maximum value is not more than 5. So either we can get what? So we can get not like we can get 3 or 4 or 5 or 2. Is it? Every time we can get either 2, 3, 4, 5. Are you convinced? So see, each time actually an unbiased die with faces this is rolled 4 times. The probability that minimum value. So what on 4 number you will get 4 different number on 4 dice. So on each die you will get different number.
the question they are asking, what is the probability that on each die, so what number you are getting on each die, the minimum value is not less than 2, means more than equal to 2, and maximum value is not more than 5, means less than equal to 5. So let me find for the one time. So on the first die, what is the probability of getting this? 2, 3, 4, 5, any one of them. There are 4 outcome out of 6. This is on the one. Are you getting? This is on the one. This is on the one die, but we have 4 dice. So required probability will be, so 4 by 6, 4 by 6, 4 by 6, 4 by 6 for the first die, 4 by 6 for the second die, 4 by 6 for the third die, and 4 by 6 for the fourth die. So we are trying for 4 times, okay? So on each die, either of the number will come, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, this will come. So you check it like 2 by 3 raised to power 4. 2 raised to power 4, 16, 3 raised to power 4, 81. This is answer, 16 by 81. First die, second die, third die, fourth die. I did like this. So on one die, you can get either 2, 3, 4, 5, according to question. So do you have any doubt in this question? No, sir. No, sir. अरे तुम्हें बताना चाहिए ना, अनम्यूट में फिर से बोल रहा हूँ, चैट में लिखोगे मुझे कैसे समझ आएगा? सर देयर इज वन मोर लेक्चर एट 6. अब यहाँ 6:10 हो गया, तुम्हें पहले बताना चाहिए ना. अभी चैट में लिख रहे हो, ये नहीं कि अनम्यूट करके बताए. आई एम सेइंग यू इन फुल स्क्रीन मोड, आई कैन नॉट सी द चैट. Okay, then probability is over from my side, and then we'll meet in next class with new chapter, or if you have a doubt then we can discuss. चलो ठीक है, you attend next class. Thank you.